हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो आज की कथा शुरू की जाए। तो कथा में सबका स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि कुछ मीनिंगफुल हम डिस्कस करेंगे। या पांते जी, हम रिकॉर्डिंग शुरू कर दो इस समय, ठीक है? यस सर स्टार्ट करेंगे। चलो एंड ओके okay. So a quick recall of things that we discussed in the last session that we had on 7th of April. We talked about certain things. The first among them is sample data. We talked something about what we mean by hypothesis, and we talked partially about what did we talk about more? Yes, okay. So we talked about something called test statistics, and what else? So if we see this, okay, so estimates. We also talked about estimate. So we did not talk much about estimates, but yes, we discussed that there is something called an estimation theory. So we talked about a little about estimation theory. Now what we'll do is we'll relate topic of hypothesis testing with machine learning, right, and understand the topic in greater detail today. Now, see, whenever we develop a classification model or any model, say ELM based model or a deep learning model. मनोज सर, एक मिनट इंटरप्शन के लिए। आपने समीर को भेजा था लिंक? समीर को, हाँ जी सर, भेज दिया ना जी, ठीक है, थैंक यू। Okay, so say in any ML model, say classification, because हम में से ज्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर हैं और ये डिस्कशन के लिए इंट्यूटिवली बहुत आसान है समझना. So say a classification model. So any ML model, say classification, what does it do? So you present it with data. We discussed that this data is nothing but sample data, and the data when given to an ML model outcomes you something as classification model, say classification model, right? Say classification model. Now what is a classification model? If we assume that ML generates a kind of set of, say, rules, right, where say A and B implies C, say a particular class C1, right? So this is a rule that if you have an attribute A having some value and a B having some value, then it implies that it is class C1, say, right? Are you getting my point? Yes sir. Yeah. Now, so any ML model that you see, you know, when you present it the data, it tries to learn why does a particular sample goes to a particular sample data point goes to a particular class label, right? It tries to learn which are the attribute conditions that result in this mapping of say a particular sample point belonging to a class C1 or a particular sample point belonging to a class C2. Are you getting my point? So there are a lot of rules, right? Say which are mapping between class 1 and class 2, say if there is a binary class problem. Are you getting the point? Yes sir. Right. Yes, Now say I want to test my model, right? So what do I see? Each of these rules are like a hypothesis, right? Each of these rules are like a hypothesis. Now what are the rules? They say that if these conditions are met, then you have class 1. If these conditions are met, then you have class 2, and so and so forth. There are multiple rules, C1 and C2. Are you getting my point? So what you have done is you have generated several rules based on your data. Now these are called
learned hypothesis, because the machine learning model has learned this rule based on data. Nobody has told it about these rules. Now these rules have been learned by it. Are you getting my point? Right, sir. Right, now each of these learned rule is a hypothesis, because now you're banking on this rule when you test this model, right? You say that this should give you C1 and this should give you C2 and this should give you C1 and this should give you C2. So what you are trying to figure out is that is this learned set of set of hypotheses, hypothesis set, because there are multiple ones, right? Learned hypothesis set. What is the performance of it? Say I say that my error rate or accuracy is say greater than 90%. Now what happens is we are trying to test whether these rules, collectively as a set, given a test data, will generate an accuracy which is close to 90% or more. Are you getting my point? Right? So each of these rules are a kind of hypothesis. Do you agree with this or not? Hello? Yes, Sir, sir. Sir, Ji. please content proceed. सर एक बार और थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो. हेलो कहीं से नॉइज आ रहा है, तो एक बार उसको अगर अपना माइक हम ऑफ कर देंगे तो बेहतर होगा. Whoever wants to speak can turn on. Yeah. So what I all mean to say is that hypothesis जो machine learning generate करता है उसको हम कहते हैं learned hypothesis. Why do we call it learned? Because the algorithm tries to figure out, learn what is the pattern of the data underlying it, right? So if you're dealing with a classification problem using a machine learning model, so a model tries to learn, the rule set. That means it tries to learn the hypothesis set. Are you getting my point? This hypothesis set are kind of, conditions which you believe, if are true in the data, will result in correct classification among C1 and C2. Are you getting my point? Sir, I have a doubt. Yeah. Sir, what is the difference between learned hypothesis and the normal hypothesis term that we used? Okay, great. So जैसे मैंने यूपी इलेक्शंस की बात कही, राइट, और हमने कहा कि बीजेपी को 250 सीट आएगी, से मैंने कहा ये सीट से नंबर म्यू से डिनोट किया मैंने, और ये 250 या उससे ज्यादा सीट आएगी. अब ये जो हाइपोथेसिस है ये मैंने लर्न नहीं की डेटा से, मैंने प्रेडिक्ट किया, मैंने एक क्लेम किया, एक स्टेटमेंट डाला, राइट. सो ये लर्न नहीं है, इट इज जस्ट अ हाइपोथेसिस, इट इज जस्ट अ क्लेम, राइट. There is no basis for making this claim. Are you getting my point? Yes, sir. Now I'll validate this claim using data. Using data, we will validate. Yes. Data comes later, hypothesis comes before. ये बात हमने कही. Yes, sir. Yes, sir. We'll validate the claim, right? Yes. Are you getting my point? In the machine learning model, data comes first, hypothesis comes next. एक्चुअली इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, जैसे मैं उस तरह ही बता रहा था, इलेक्शन लाइक सिनेरियो में एक्चुअली पार्टी में भी इंटरेस्टेड टू नो वेदर दे विल क्रॉस द हाफवे मार्क और नॉट. But So the that is so the based on hypothesis data. is that this, and then they want to test it based on the data actually, whatever they want to claim. मनोज सर ऐसा ही है. सर दो बातें हैं. जब कोई पार्टी डिसाइड करती है कि हमें कितनी सीट मिलेगी बेस्ड ऑन सैंपल सर्वे, नहीं वो तो अलग चीज हो गई, सैंपल सर्वे तो एक अलग चीज हो गई. एक्चुअली बेसिक नहीं, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है. जैसे पार्टी चाह रही है, भाई देख रही है कि इलेक्शन कराएं कि ना कराएं, तो पार्टी ने कहा, सरकार देख रही है हमें इलेक्शन कराना चाहिए, नहीं इज इट द राइट टाइम टू डू इलेक्शन, तो shall we cross the halfway mark? So hypothesis is we will cross the halfway mark, then you validate it by collecting data and whatever you want to do.
one way of looking at it can be this. It depends on the objective of the study that Correct. we are trying to do. Right? What I'm trying to make sense is, difference between a machine learning hypothesis and a general hypothesis that we talk about. मशीन लर्निंग में हम चाहते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो डेटा से हमें इंफॉर्मेशन दे, राइट? तो जब मशीन लर्निंग मॉडल आप चलाते हैं, कोई भी मॉडल, तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसके पास कोई रूल नहीं होता, कोई मैपिंग का तरीका नहीं होता. Are you getting my point? Yes, sir. Sir, 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 one doubt I'm having. Sir, why are these set of rules called as learned hypothesis? Okay, very good question. That is good. So, what is a hypothesis? Hypothesis is a claim. Yes. It's a proposition, right? That you believe will hold good. Are you getting my point? Yes, sir. That you believe will hold good. So now, who makes this claim? So when the model learns about your data, ML model learns about your data, what is the learning, things? What is the learning outcome? Learning outcome is it has a set of rules to map your data So class to level. target values. Are you getting my point? Yes, sir. तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है, ये क्या है? सेट ऑफ क्लेम्स है. Yes. हर मॉडल का अलग अलग सेट ऑफ रूल्स होंगे, जी. राइट? उसके नंबर भी अलग होंगे, रूल्स भी अलग होंगे, हो सकता है, राइट? You are employing a machine learning model, it will have a different set of rules. You will employ a deep learning model, it will have a different set of rules based on the hyperparameters that you tune, right? Yes, sir. So each model based on the same data may learn a different set of rules. Do you agree? Yes, sir. Right? Are we good here? Till this point, Yes, yes, sir. right? सर Yeah, एक क्वेश्चन था. जी. सर हमने सपोज ऊपर जो सेट ऑफ रूल्स आए हैं हमारे पास, हम उससे कह रहे हैं कि सेट ऑफ हाइपोथेसिस हैं. जी. सपोज हमने मतलब हाइपर पैरामीटर चेंज करा, तो हमारे पास एक न्यू मॉडल आएगा और कोरस्पॉन्डिंगली हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स आएंगे. बिल्कुल. तो हाइपोथेसिस स्पेस जो है हम किसे कहेंगे, मतलब कोरस्पॉन्ड. Very good. I'm so happy that this kind of questions are coming out. Hypothesis space. बहुत अच्छी बात है ये. This is called set of all possible hypotheses. Right? Now, what is the set of all possible hypotheses? The set of all possible hypotheses is the entire universe. Sir, Yeah. पूछना है किसी को. I think somebody can answer this question in some context, ना? Okay. सब लोग कर रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, तो बहुत लोग कर रहे हैं. जैसे आई थिंक सरबजीत इज डूइंग. सरबजीत जी आप कुछ कर रहे हो ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हो ना आप? सर मैं रश्मित. आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी. मनोज सर. हाँ जी, हाँ जी. मनोज सर. जी सर. जी सर. आप अगर परमिशन दो तो 30 सेकंड के लिए मैं जो बच्चे अभी पूछ रहे थे आप ही की बात को पिक्टोरियली दिखाऊं एक बार. जी जी. Why not sir? Why not sir? सिर्फ हाफ ए मिनट. नहीं आराम से, ठीक है, एज मच टाइम. Please, please. आई थिंक स्क्रीन विजिबल है. जी जी. जी. तो मनोज सर आई थिंक ये कह रहे थे ये आपके रूल्स हैं, ट्रेन हो रहे हैं, जो भी लर्निंग एल्गोरिथम हम यूज कर रहे हैं, और जो उसका जो आउटपुट है ये लर्न्ड हाइपोथेसिस है. बिल्कुल बिल्कुल. ये हमें पहले से नहीं पता है. ये बेसिकली जो आपके इनपुट और आउटपुट डेटा के बीच की रिलेशनशिप है जो ये हाइपोथेसिस आपको बता रही है. हमें जी. पहले से नहीं पता है.
तो ये जो भी एच दिया हुआ है हाइपोथेसिस, ये लर्न्ड हाइपोथेसिस है, और बाकी तो बता ही दिया है। और सेम चीज अभी हाइपोथेसिस स्पेस तो जो नीरज सर एक मिनट, वो राइट हैंड साइड वाला बता दो तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर, जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर समझा दोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये जो x है, ये x हमारा इनपुट डेटा है, और हम कुछ एक्सेस दिए हुए हैं और y दिया हुआ है। y जो है हमारे पास जो भी डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम ट्रेन कर रहे हैं, वो है। तो इस सेट ऑफ एक्सेस है और y है, जिसको हम लेबल डेटा कहते हैं। तो क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं। हमें रिलेशनशिप नहीं मालूम है क्वेश्चंस और आंसर्स की, इसलिए हमें हाइपोथेसिस मशीन लर्निंग मॉडल हमारा निकाल के देगा, जो को लर्न हाइपोथेसिस कह रहे हैं। ये हमारा एक बेसिक एक एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस का, कि लीनियर हाइपोथेसिस कि ये तो पैरामीटर्स हैं θ0 θ1 जो एक्चुअली लर्न करते हैं हम कि क्या होना चाहिए। मॉडल यही पैरामीटर्स को लर्न करता है। तो ये इनपुट डेटा ये एक्सिस की हेल्प से शो किया हुआ है, और जो भी सिंपल, यहाँ तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है हाइपोथेसिस का। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से ये वन फिट है। ये जो लाइन निकल के आ रही है, ये एच ऑफ थीटा एक्स बेसिकली ये एक, क्योंकि लीनियर हाइपोथेसिस है तो ये लाइन शो कर रहा है। और किसी भी पर्टिकुलर, अब कोई नया टेस्ट करने के लिए हम डेटा लेंगे, सपोज करें कि हमें यहाँ पे देखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो x की जो भी वैल्यू होगी और उसको फिर y का जो इंटरसेक्शन होगा जो इस लाइन पे, वो हमारी ये y की वैल्यू बताएगा। और क्योंकि हमें नहीं मालूम है कि ये तो बहुत अच्छा फिट दिया हुआ है कि इनपुट डेटा को एक अच्छे ढंग से फिट दिखा रहा है, हमें नहीं मालूम है क्योंकि पहली बार में ये इतना अच्छा फिट देगा जरूरी नहीं है। ये बार बार ट्राई करता है। तो कोई हाइपोथेसिस कैसा हो सकता है, तो हाइपोथेसिस स्पेस जो सर अभी बता रहे थे कि ऑल पॉसिबल, तो ये जो अलग अलग लाइंस दी हैं ये अलग अलग वो है कि θ0 θ1 θ2 की जो डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, उसके लिए कोई हाइपोथेसिस हो सकता है इट इज अ वेरी बैड फिट, कोई हो सकता है इट इज अ गुड फिट। तो हाइपोथेसिस स्पेस का मतलब है कि जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है सर एक मतलब सर वो स्लाइड, प्रीवियस वाली स्लाइड एक बार प्लीज ओपन कीजिए। दैट मीन्स मतलब सर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट मीन्स जो हमारे पास ट्रेन मॉडल आ रहा है वो ट्रेन मॉडल इज नथिंग बट अ हाइपोथेसिस, और वो जो ट्रेन मॉडल है उस ट्रेन मॉडल में कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। तो यानी कि वो जो सेट ऑफ रूल्स हैं, हम उस सेट ऑफ रूल्स को एक हाइपोथेसिस कहते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ रूल्स आएंगे, तो उन सब के कलेक्शन को हम बेसिकली हाइपोथेसिस स्पेस कहेंगे। मतलब ऐसा ही है कुछ? मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है कि सुबोध ये जो है ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है आपकी टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पे ना अगर आप हाइपोथेसिस और रूल को सिनोनिमसली यूज कर रहे हो तब तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि ये जो हाइपोथेसिस है ना यही रूल है बस, इसमें और कुछ नहीं है। θ0 + θ1x दैट्स द रूल, और दिस इज द हाइपोथेसिस। हाँ, तो और आई डोंट नो, आर यू मैं भी ट्राई करूं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से? हाँ जी सर, रियल लाइफ के एग्जांपल से ट्राई करने की कोशिश करूं। बेसिकली क्वेश्चन ये था जी जी ओंकार सिंह जी, जो हाइपोथेसिस है और लर्न्ड हाइपोथेसिस है, इनमें क्या फर्क है? बेसिकली क्वेश्चन यही है ना मेरे ख्याल से। ओके चलो बताओ। तो सर जैसे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, दूर से बोल रहे हो आप? हाँ सर, मैं आउट ऑफ स्टेशन था लेकिन क्लास ज्वाइन करनी थी तो अच्छा नहीं, थैंक्स। सर जैसे एक मान लीजिए कंपनी है, कोक की कंपनी है, और कहीं से शिकायत आई है हमारे को कि भाई सर कोका कोला कंपनी जी जी वो 300 ml की पेट बोतल बना रही है ना, तो और कहीं से शिकायत है कि भाई नहीं, हम इसकी क्वांटिटी जो है ना 300 ml से कम रहती है। तो अब हम टेस्टिंग करना चाहते हैं कि जो क्लेम है कि 300 ml से कम रहता है, कि वो एक्चुअली रहता है या नहीं रहता है, हम उसके ऊपर अपना जानना चाह रहे हैं। तो ये एक हाइपोथेसिस हुआ हमारा कि हम डेटा के बेसिस पर जानना चाहेंगे कि हमारा ये क्लेम सही है या गलत है। ये तो हुआ हाइपोथेसिस। इसका कोई डेटा से रिलेटेड नहीं है कि भाई
जो लर्नड डेटा हमारे पास सैंपल डेटा जिसकी बात हो रही है उस पर उससे लेना देना नहीं है। हम सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि 300 ml से कम है या नहीं है। और जो अभी सर बता रहे थे कि अब हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फॉर एग्जांपल हमने स्पैम और नॉट स्पैम की एक क्लासिफिकेशन की लर्निंग एल्गोरिथम बना ली है। और उसमें एक रूल अगर लिखा हुआ है कि भाई मान लीजिए एक मेल में आता है ऑफर लिखा हुआ आता है कीवर्ड, और लिखा हुआ होता है कि गिव योर अकाउंट नंबर, से इस तरह के कीवर्ड आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ईमेल इज अ स्पैम। ठीक है सर, एक रूल है ये। तो दिस इज वन लर्न्ड हाइपोथेसिस व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन गिवन डेटा, सैंपल डेटा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड लर्न्ड हाइपोथेसिस, I think, and set of all rules is learned hypothesis. Set of basically set को कहेंगे hypothesis space, जितने भी हमारे hypothesis है उनका सारा का सेट। मनोज सर यही है जी। नीरज सर। हाँ जी सर। एक बार अपनी स्लाइड दिखाना दोबारा से। जी सर। स्लाइड 1। हाँ अभी दिखाता हूँ सर। इसमें बेसिकली जो मुझे समझ में आया और कि नीरज जी ने बड़े अच्छे ढंग से दिखाया है, ये थीटा नॉट थीटा 1, इसको मैं अगर नीरज जी के डिस्कशन को एक लाइन में समराइज करूं तो ये थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 जो वेक्टर है, दिस वेक्टर थीटा नॉट थीटा 1 represents the complete hypothesis space. All real values of theta naught and all real values of theta 1, they completely define the hypothesis space, and by varying these we are getting different hypotheses जो नीरज जी ने अगली स्लाइड में दिखाया हुआ। तो जो मनोज सर समझाने की कोशिश कर रहे थे व्हाट इज ए हाइपोथेसिस स्पेस, और ये मैंने जो बोला ऑल रियल नंबर जो है इसको आप थोड़ा सा कंस्ट्रेंट कर दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में ऑल रियल नंबर नहीं होता, तो रियल नंबर भी एक फाइनाइट सेट के सेंस में यूज होता है। तो विद इन दैट लिमिटेशन दिस इज व्हाट इट इज। So Manoj sir, please continue. Thank you. I will take 2 minutes break, but you continue. Okay. Okay. So just a question before we begin again. Yeah. So sir, as far as I could understand, if we are talking about linear regression, then the set of all lines in the 2D plane will constitute the hypothesis space. There was some noise, I think. Hello. Yeah. Yeah. So I was saying, if we are talking about linear regression, then the set of all lines in the 2D plane will constitute the hypothesis space. Yeah, hypothesis space. Yeah. Right. But if we are not constraining ourselves to the 2D plane, and we are saying that we could have polynomial functions as well, so does that mean कि hypothesis space में एक ही type की hypothesis होनी चाहिए? For instance, straight lines ही होनी चाहिए? नहीं. You know, there is a general rule, say, in the example that Neeraj sir has shown, this was a linear equation, right? Right, sir. Linear equation. So if your hypotheses are all of type linear, say, your model is linear, then it will only have lines in it. Yes, sir. So that will define the hypothesis space. If your model also has non-linearity in it, then it will consider both linear and non-linear as a set of hypotheses. Yes, sir, definitely. Right. So the space depends on the model. Okay. What kind of hypothesis can it generate? Okay, sir. Right. If you talk in terms of linearity and non-linearity. Yes, sir. इसीलिए तो हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स यूज करते हैं ना, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमें लगता है, कभी न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, कभी कुछ यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम वी डोंट वांट टू बी कंस्ट्रेन्ड बाय द लिनियरिटी, भी सिर्फ लीनियर ही होगी हाइपोथेसिस हमारी, पर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मॉडल। Yes. Yes, sir. जी। तो यहाँ तक बात समझ में आई हमें सबको कि क्या है हाइपोथेसिस स्पेस, क्या होता है मॉडल का लर्न हाइपोथेसिस सेट, एंड दिस इतना ही किया अभी तक तो हमने। ठीक है। Yes. चलें आगे चलें हम लोग इससे आप। Yes. राइट। अब आप देखिए कोई मशीन लर्निंग मॉडल है, जैसे मैंने बताया, to begin with it does not have any hypothesis, right? Now the moment you give it one training data, say training data, you pass through a ML model,
it starts building its hypothesis set, right? Do you agree? Right. Now, as you train, what do? You refine your hypothesis, right? You iterate and you come back, give a feedback, and you go say we are typically considering the models that we know about, right? So we iterate and we correct this hypothesis set. Do you agree with this? Right, sir. Right. Now, what happens is that when you iterate and you go over and over, for some, then you see that your error rate for training data stabilizes, right? Are you getting my point? Yes, sir. Now you stop, training. Then you say that there is no further improvement in training. Do you all agree with me, right? We do it this way, right? We run our algorithm for certain set of iterations. Now we generally have a stopping criteria, that is, say, when the error rate stabilizes, right? It may be after 10 iterations, maybe after 1000 iterations, right? Now, what is that training error, that stabilizes? ये training error है क्या चीज? क्या है जो stabilize कर चुका है? So, as you understand, जब आप एक बार पहली बार चलाएंगे आपके ML algorithm को अपनी training data पे, तो error maximum होगा. Do you agree? Yes, sir. Right? ये error क्या है कि जो उसने mapping जानी है data की, it has a sample data. Let me say subset of sample data, जिसको आपने training data कहा है, right? जिस पे आप अपना model build करोगे. Now it tries to learn how the samples relate to the class labels, right? Based on this training data, and it generates a set of rules. Now, whenever it does so, it has some error, right? That is called training error, right? We all agree to this? We have heard this terminology, training error. Yes, sir. How do you define a training error? What is a training error? Can you help me? Say we're dealing with a binary classification ML model. What is the training error in this? How do you define a training error of a binary classification ML model? Can anybody volunteer? Sir, it is the proportion of examples which we were not able to classify correctly. Okay. So since we are dealing with a supervised learning ML algorithm, so you have already class labels, with your data, right? So training error is number of or percentage of misclassification. So number of misclassifications divided by total number of instances, right? Do you agree? Right? Yes, sir. Okay, now if we draw a graph of, say, this error, and this is, say, number of iterations, right? So this is error percent, say. Now, what should be the shape of this graph? What is your idea? So when the training is पहले ये origin से बढ़ेगा पहले, फिर ये stabilize हो जाएगा, जैसा आपने बताया. इस तरह का चलेगा ये graph? Yes, sir. Right? Do you agree? Yes, sir. I hope most of you have understand why this behaves in this manner. Yes, sir. Right? So what is the reason that it is behaving in this manner, that is decreasing and then stabilizes? So refinement of the hypothesis. So refinement of the hypothesis is learning how to map the data correctly, right? Now say, I say that it starts from here and then it comes here after some time, I know, with the x-axis. Now what is the scenario? So the hypothesis actually coincides with the true level.
hypothesize predicted levels are coinciding with the true level. So what does this mean? So model is actually predicting entirely Absolutely correct result. Overfitting. Are you getting the point? Yes, sir. Or maybe memorizing. Right? Yes, sir. Right? Your hypothesis, that means you're learning on the rules. You know? So हर डेटा पॉइंट के लिए जो रूल था वो समझ लो आपने एक रूल बना दिया, जो भी कंडीशन आएगी वो ट्रू हो जाएगी. Are you getting my point? So आपकी इनिशियल एरर बहुत हाई थी, फिर जो भी डेटा वैल्यूज थे आपके, समझ लो आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स थे, A1, A2, A3, A4. इसकी कोई वैल्यू थी x1, इसकी कोई वैल्यू थी y1, इसकी कोई वैल्यू थी s1, इसकी कोई वैल्यू थी t1, जिसके बेस पे c1 हो रहा था, और फिर एक दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए c2 हो रहा था, फिर एक दूसरी सेट ऑफ वैल्यूज के लिए c1. इसने पूरे कोई रूल बना दिया, जब ऐसा होगा तो c1 बता दो, फिर जो दूसरी वैल्यू है वो पूरा जो आपका डेटा सैंपल की फीचर्स सेट है उसको ही रूल बना दिया आपने. तो क्या करेंगे, आपका कोई रूल गलत नहीं होगा, हर सैंपल पॉइंट एक रूल है. डू यू एग्री विथ मी? यस सर. राइट? तो क्या कर दिया आपने, डेटा को एग्जैक्टली फिट कर दिया आपने हाइपोथेसिस के साथ. राइट? Yes, sir. Yes, sir. Right? Now say you have a graph like this. What is this? Say this is 50%. Hello? This model is unable to learn the features, it is just guessing. Underfitting. Underfitting, right? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है हो? Any No, question? I have a question here. Yeah. I think सुबोध भी यही पूछ रहा था that इसमें जब हम hypothesis space की बात कर रहे हैं जी. तो उसमें थोड़ा सा confusion है. जो हर एक hypothesis space में there are a set of hypotheses, right? Okay. We are trying to find the best one. So No, like, no. नहीं. See, कलेक्शन अगर एक मॉडल है और एक मॉडल को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, समझ लो, राइट? कि एक मॉडल है एमएल का, ये मेरे लिए एक हाइपोथेसिस है, एक दूसरा मॉडल है एमएल का, मेरे लिए ये हाइपोथेसिस है, समझ लो. नाउ इसके अंदर बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं. So here we are refining the subset of the hypothesis space depending on the machine model used. समझ लो ये मॉडल आप डेवलप करना चाहते हैं, समझ लो एक आप एसबीएम क्लासिफायर डेवलप करना चाहते हैं, राइट? आप डेटा डालते हैं और वो एक आपको प्लेन सेपरेटर देता है, इस लाइन से प्लेन सेपरेट हो जाएगी, राइट? और इसको आप चलाते हैं ओवर से 500 इटरेशंस और फाइनली यू हैव अ सेट ऑफ रूल्स, राइट? So that is one of the hypotheses from that hypothesis space. The hypothesis space will depend on all the set of models that you run and the collection of all the hypotheses that you have. So each machine learning model will give me a subset of that hypothesis space, right, sir? Yeah, it will give you one hypothesis, say. And Manoj sir, that particular hypothesis. Manoj sir, जी. I think ना इसमें confusion ये हो रहा है जी कि ना इसका प्रॉब्लम्स का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. ये जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, ये जो अभी नीरज सर जो दिखा रहे थे जैसे, तो इसमें जो है हमारा जो मॉडल जो है, मॉडल हमें एक यूनिक हाइपोथेसिस जनरेट करके दे रहा है, समझ रहे हो जी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडल एंड हाइपोथेसिस आर सिनोनिमस. कहाँ पे? ये जो नीरज सर जो दिखा रहे थे, मशीन लर्निंग से मॉडल जो हमने जनरेट किया जी, इट कंप्राइजेस एग्जैक्टली वन हाइपोथेसिस. या ओके, ठीक है ना? ओके. तो इसलिए कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि व्हाट यू आर टॉकिंग इज यू आर टॉकिंग ऑफ अ डिफरेंट सिनेरियो एक्चुअली. जैसे कि वो जैसे गेम होता है ना, गेम प्ले होता है जैसे कि भाई अगर इन द मॉर्निंग इफ यू सी द सन, the sky is sunny and if you see that the temperature is not more than 30 degrees. आप कुछ मत ले. नीरज सर की जो प्रॉब्लम है ना सर, सुनिए सर, नीरज सर की जो प्रॉब्लम है वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है,
दैट्स ओके। उन्होंने एक रिग्रेसर डिफाइन किया है RX। नहीं वो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि 0-1 आउटपुट दे रहा है वो करके। लेट अस अंडरस्टैंड, दिस इज अ रिग्रेसर, राइट? अब समझ लो डिसीजन ट्री है आपकी। वही डिसीजन ट्री अलग तरह की प्रॉब्लम है, करेक्ट। अब डिसीजन ट्री में बहुत सारे रूल्स होते हैं, यू नो, योर ट्री कैन स्पैन आउट मल्टीपल रूल्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Which will classify. Now it will make sense. According to, you know, this is a set of rule, right? This is another set of rule. This is another set of rule. Do you agree with me? This is another set of rule, right? Hello? हाँ जी सर जी सर, जो सेट ऑफ रूल्स हम लोग कह रहे हैं वो अगर मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो फीचर एट्रीब्यूट्स हुए ना सर डेटा के। डिपेंड करता है उनका combination or something. Yeah, it can be anything based on, yes, attribute features. एट्रीब्यूट फीचर्स में हाँ। आप जीन क्लासिफिकेशन पे काम करते हैं तो जीन क्लासिफिकेशन पे आप समझ लो 20,000 जीन से स्टार्ट करते हैं और फिर आप 50 या से 60 जीन्स पे आ जाते हैं। वो क्या है? वो एक फीचर मैपिंग है ना। आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ने कहा है भाई ये 60 पे ही काम हो जाएगा हमारा with certain degree of accuracy. Are you getting my point? यस सर। तो इसका कोई लीनियर नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन है जो इनको यूज करके आपको आउटपुट दे रहा है, राइट? राइट सर हाँ। Right, so there is, you know, there is not a single rule. It may be scenario specific, and there may be, you know, hundreds of rules, you know, in a model. Getting my point? So it depends, you know, how complex the model is and what is the rule set in it. You can talk of the entire set as hypothesis. ये एक abstraction की बात है, and you can talk about each rule being a hypothesis in itself. Are you getting my point? But for our discussion, we'll talk about, when we talk about hypothesis, we'll talk about the set of rules. So this is outcome of the model. See, ठीक है? Yes sir. Right? Now, there are two very important concepts. You know, one is called bias, right? And another is called variance, right? Can anybody tell me, you know, from their experience, what is called bias in estimate? In the machine learning terminology, not in the hypothesis testing terminology. I'll come to that. There is bias and there is variance. Hello? हाँ जी। Bias, maybe the error between the average model prediction and the ground truth. देखिए टेक्निकली नहीं जाना हमें समझना कंसेप्चुअली क्या है। why it is called bias, right? Now bias क्या है? झुकाव को हम bias कहते हैं। I am biased to certain things, certain people, certain scenarios. Are you getting my point? Yes. तो बायस हमारा इंक्लिनेशन होता है, झुकाव होता है, हमारा एक नेचुरल यू नो प्रेफरेंस होता है, वहां पे हम बायस्ड होते हैं, राइट? डू यू ऑल एग्री विद द कांसेप्ट ऑफ बायस? जी सर। अब ट्रेनिंग में बायस की बात होती है, तो ट्रेनिंग में हमने पहले डेटा दे दिया, लेबल्स दे दिए और उसको कहा जानो इस लेबल्स को कैसे मैप करना है, हाउ टू मैप योर डेटा टू लेबल. You getting my point? In a supervised learning environment. Do you agree with me? Yes sir. तो जो मॉडल लर्न कर रहा है उसको आपने पहले से ही बता दिया, क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया और कहा रटो इनको, राइट? और वो उसको रट रहा है, रटने के बाद उसके पास एक एरर आ रही है, राइट? Are you getting the point? Yes sir. This error is called your bias, training error, right? Why it is called bias? Because your examples and labels are both exposed to it, right? So it knows किसको मैपिंग किसकी करनी है, कैसे करनी है, right? Now ये जो bias है इसको optimistic error भी कह सकते हैं हम लोग. Are you getting my point? Yes sir.
राइट। अब बात को समझिए कि अगर ये हम बता दें कि इसमें जो एरर रेट आ रही है हमारी वही मेरी मॉडल की एरर रेट है, तो क्या ये ट्रू एरर रेट होगी हमारी मॉडल की? नहीं। क्यों नहीं होगी? सीन डेटा है ना सर, क्योंकि इसने अभी दुनिया नहीं देखी है। यस सर, इसने एक सैंपल देखा है, सैंपल डेटा के बेसिस पे जहां सब कुछ दिया हुआ था, क्वेश्चन और आंसर, और इसने कहा कि ये मेरी एरर है। तो अगर आप किसी बच्चे को क्वेश्चन भी दे दे और आंसर भी दे दे और पूछे भाई कितने नंबर आए, तो बच्चे ने कहा मेरे नंबर आए 99%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट सर। तो क्या वो बच्चा 99% वाला है, ये किसका पता कैसे चलेगा? जब आप उसको नए क्वेश्चंस देंगे और आंसर नहीं देंगे। आप उससे पूछेंगे आंसर बताओ, राइट? तो जब आप पॉपुलेशन या एक डिफरेंट डेटा सेट देते हैं, डिफरेंट डेटा एमएल एल्गोरिथम को देते हैं अपने, तो उसकी जो एरर आएगी उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू एरर, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। राइट। सो अब जो ये एरर आएगी इससे कम आएगी या ज्यादा आएगी? ज्यादा आनी चाहिए। ज्यादा आनी चाहिए सर। एरर क्यों ज्यादा आनी चाहिए? हाँ सर, क्योंकि अनसीन डेटा पे अब आया है सर। तो अनसीन डेटा जब इसको देते हैं, अनसीन डेटा जब इसको देते हैं, तो ये अपने रूल्स के हिसाब से क्लासिफाई करने की कोशिश करता है, राइट? और जब ये आपने एक डेटा सेट दिया, समझ लो टेस्ट डेटा, इसको टेस्ट डेटा कहते हैं। आपने एक टेस्ट डेटा दिया 1, यू हैव एरर E1। आपने टेस्ट डेटा चेंज किया 2, आपके पास एरर रेट आएगी 2। आपने टेस्ट डेटा चेंज किया 3, आपके पास error rate I3, and so forth, En. Now each of this error rate may be different. Yes sir. सबसे कम किस में आएगी? सबसे कम एरर किस में आएगी? सर जो टेस्ट डेटा ज्यादा क्लोजर टू होगा हमारे, जिसमें एकदम सैंपल डेटा के, राइट? ट्रेनिंग डेटा के। सो टेस्ट डेटा which is closest to the training data, right? उसी के एरर सबसे कम आएगी। Are you getting my point? Yes sir. Yes. तो वेरिएंस की बात कहां से आती है इसमें? What is variance in estimate? ये बात कहां से आती है? वेरिएंस क्या है? वेरिएबिलिटी फ्रॉम अ पॉइंट, राइट? तो जो आपका ट्रेनिंग डेटा है वो एक पॉइंट है, ट्रेनिंग एरर आपका एक पॉइंट है। आर गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? यस सर। राइट। सो अगर आप अनसीन डेटा देंगे तो अलग अलग, और इनके अंदर एक वेरिएबिलिटी होगी। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes sir. So, Yes, sir. variability between E1, E2 and En. If you compute the variance of this data, this is variance in estimate, right? अब variance किस मॉडल का ज्यादा है? हमने कहा variance V1 is more than variance V2, where V1 and V2 are two different models. What does it mean? That means V1 जो होगा मतलब V2 वो is more ज्यादा closer मतलब to- नहीं फार्दर होगा ना। V2 V2 हाँ अपोजिट देखे तो V2 ज्यादा अगर क्लोजर है तो दैट मींस उसका वेरिएंस। What does it mean? V1 variance वाला मॉडल एक है ML1 और ये ML2। आप कौन से एल्गोरिथम को प्रेफर करोगे? So V2 Why? because there's less variance, so it is more close. Right. No. Sir, it is more learned model. हाँ हाँ हाँ. हम V2 को प्रेफर करेंगे, कारण क्या है? देखिए वेरिएंस ज्यादा होने का मतलब है इसकी प्रिडिक्शन जो है ये रैंडम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो प्रिडिक्शन है मॉडल की
वो कंसिस्टेंट नहीं है. Variance is a measure of prediction consistency. Do you agree with me? Yes, sir. With higher variance, the model is, predicting randomly, more randomly. Are you getting my point? So if V1 has a higher variance than V2, then you can say that the, predictability of V2, it can be more sure of than the predictability of V1 on random test examples. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. Right? So the idea of bias variance is that कि हम bias भी कम चाहिए, हमें variance भी कम चाहिए. Are you getting my point? हम ऐसा मॉडल चाहते हैं जो ट्रेनिंग से भी समझ जाए कि क्या समझना है उसको, और उसकी जो आउटपुट हो टेस्ट डेटा पे, उसका जो वेरिएंस है वो कम से कम रहे. अच्छा मनोज सर, एक प्रश्न है जी. क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो हमने लिखा E1, E2, E3, EN, डिफरेंट एरर्स आ गए डिफरेंट डेटा के ऊपर, ठीक है, तो इनका जो है मतलब वेरिएशन अक्रॉस दीज वैल्यूज E1, E2, E3, EN एक मॉडल है जिसका कि वेरिएशन अक्रॉस दीज वैल्यूज E1, E2, E3, EN जो है तो कम है, बट as compared to the other model, second model 2, तो जिसमें कि across the samples जो है तो वेरिएशन ज्यादा है, but no numerical values are lower. नहीं, दो बातें हैं सर. हाँ, दो बातें हैं ना ये. हाँ, देखिए X1 जैसे मेरा मतलब ये जैसे ट्रेनिंग है, ठीक है ना, ट्रेनिंग डेटा से आप डिफरेंस निकालते हो मॉडल 1 का. जी. हेलो जी, सुन रहा हूँ जी. तो ये मान लो ट्रेनिंग एरर आपकी आ गई जो है ट्रेनिंग एरर आपकी आ गई 5%, ठीक है. ठीक है. तो मॉडल 1 क्या कह रहा है, मॉडल 1 पे जब हम देखते हैं तो मॉडल 1 हमें देता है कि भाई इन द रेंज जो है 20%, 21%, 20.5%, 20.3% ऐसे आ गई हमारी. अच्छा एक दूसरा मॉडल है जी. वो दूसरा मॉडल क्या दे रहा है, दूसरा मॉडल दे रहा है एरर्स इस तरह से, तो उसके अलग अलग डेटा सेट्स के ऊपर 10%, 11%, 9%, 10%, 9%, 11% ऐसे दे रहा है. तो अब क्या हो रहा है इसमें कि अगर इनका जो आप वेरिएशन देखोगे तो वेरिएशन अक्रॉस द डिफरेंट डेटा सेट्स आप देखोगे जी, तो सेकंड मॉडल जो है उसमें वेरिएशन कम है, ठीक है. हालांकि वो पहला मॉडल तो 10% की रेंज में ही दे रहा है सारा, कोई 10 है, कोई 11 है, कोई 12 है, कोई 9 है. दूसरा 20 की रेंज में दे रहा है, लेकिन 20 की रेंज में तो दे रहा है, लेकिन उसके 19.5 है, 20.2 है, 19.8 है, इस तरह से दे रहा है. ओके. तो आप इसको कैसे समझेंगे? ओके, सो आप कह रहे हैं कि अगर ये डेटा है दो हमारे पास X1, X2, XN, जिनका स्केल अलग अलग है, समझ लो एक का स्केल ये जो डेटा है ये 0 और 1 के बीच में है, सेम ही डेटा सेट्स है, सेम ही डेटा सेट्स. हाँ, डेटा सेट्स आर सेम, मतलब ये तो हम उसके रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेसीज की बात कर रहे हैं हम. जी, ये 10 से 11 के बीच में है. ये क्या बना दिया हम, ये तो डेटा सेट्स है ना. X1 नहीं, X1, X2 रैंडम आउटपुट है एरर की, समझ लो. अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, राइट, दीज आर एरर आउटपुट्स. ठीक है. राइट, सो एक X1, X2, XN एरर रेट्स है, आपने n मॉडल्स पे चलाया है डेटा, और 10 से 11 के बीच में है, और ये 0 से 1 के बीच में है. Are you getting my point? या और आपकी बात को ऊपर करते हैं 10.5 के बीच में है. Are you getting the question? समझ में आया सर का? सर क्या कह रहे हैं? हेलो. हाँ जी. यस सर. सर दो मॉडल्स का डिफरेंस बता रहे हैं सर. हाँ, इसको और मीनिंगफुल बना देते हैं. ये 5 से 6 में है, राइट. 5 से 7 लिख दो और आसान हो जाएगा समझना. ठीक है. हाँ, 5 से 6, चलो 5 से 7 पे कर देते हैं. 5 से 7% की एरर है ये वैल्यूज जो है, और ये जो है 10 से 11 में है, 10% से 11% में है. अब जब इनकी आप वेरिएंस कंप्यूट करेंगे तो वेरिएंस 1/n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर करेंगे,
और यहाँ पे करेंगे सेम, x के लिए है ये, sy के लिए है तो सेम n समेशन yi माइनस y बार होल स्क्वायर करेंगे, -1 कर लो चाहे डिवीजन में, हाँ जैसे करो, ठीक है ना। ये वेरिएंस है हमारा x और y का। अब जो क्योंकि ये वैल्यूज 10 से 11 के बीच में लाई करती हैं, तो ये सम जो भी x बार होगा इसका वो कितना होगा, 10 से 11 के बीच में कोई होगा 10.5 समझ 10.5 समझ लीजिए, 10.5 समझ लीजिए। तो इसकी जब डिफरेंस करेंगे x1 के साथ तो 0.5 इधर या 0.5 उधर आएगा मैक्सिमम, तो ये 0.5 का स्क्वायर है। आर गेटिंग माय पॉइंट? मोटा मोटा समझ लीजिए, और ये 1 का स्क्वायर है मोटा मोटा। तो ये सम करेंगे आप ओवर i इक्वल टू 1 to n, और ये सम करेंगे आप ओवर y इक्वल टू 1 to n। तो ये सम जो निकल के आ रहा है 1 into 4 आ रहा है डिवाइडेड बाय 1 by n। आर गेटिंग माय पॉइंट? हाफ का स्क्वायर इज 1/4 और सबका मान लेते हैं, तो इस तरह का कुछ एक एवरेज आ रहा है 1/4। आर गेटिंग माय पॉइंट? और अगर इसको ले लें तो ये n की तरह सम आ रहा है व्हिच इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? पूछो। हेलो हेलो सर, बेसिकली वही कहना चाह रहे हैं ना कि फर्स्ट केस में रश्मित मैडम, आर यू फॉलोइंग द क्वेश्चन? आंसर तो सर Yes, बताने sir. के बाद है, क्वेश्चन Yes, समझ sir. में आ Yes. रहा है? Yes, sir. तो एक का वेरिएंस जो है, x का वेरिएंस जो है 1/4 है, और जो y का वेरिएंस है वो 1 है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर वेरिएंस को कंपेयर करेंगे तो vx इज लेस देन vy एंड वी शुड सिलेक्ट x एज द मॉडल। आर गेटिंग माय पॉइंट? राइट? यस सर। तो अगर हम खाली वेरिएंस पे बेस करेंगे अपने डिसीजन को कि जो मॉडल का वेरिएंस कम होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, एक हायर एरर रेट वाले मॉडल को सिलेक्ट कर लेंगे। विल सिलेक्ट दिस, राइट? दो वेरिएंस इज नॉट द ओनली मेजर। अगर माय पॉइंट टू सिलेक्ट द मॉडल, वेरिएंस इज वन मेजर टू क्वांटिफाई अ मॉडल कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, राइट? जब हम इसका लॉन्ग टर्म एवरेज निकालेंगे x बार और y बार, तो हमें ये बताएगा कि ये 10.5 है और ये बताएगा इट इज 6 से, राइट? आर गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अच्छा, फिर इसके यहीं पे खत्म नहीं करते, इसके आगे कहानी होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये क्या कहती है कि व्हाट इज योर लाइकली वैल्यू, लाइकली एरर, एरर किस रेंज में रहेगी, इंटरवल क्या है उसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है। तो जब इसकी निकालेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस जेड अल्फा इंटू 1। उसकी बात बाद में करेंगे जेड अल्फा क्या है, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। और इसका जब निकालेंगे आप एक्स का, यही इंटरवल निकालेंगे तो ये आएगा 10.5 प्लस माइनस सेम जेड अल्फा इंटू 1/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एट द सेम कॉन्फिडेंस लेवल, राइट? तो कहानी क्या है, जब इसकी रेंज देखेंगे आप, तो इसकी रेंज देखेंगे आप, ये होगी समझ लो 9 से लेके 12 तक। जब इसकी रेंज देखेंगे आप तो ये दिखेगी आपको से 4.5 से लेके 7 तक। तो अब आपको एरर कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। अगर दी पॉइंट, चलो ठीक है, थोड़ी सी गलती है इसमें, बताएं। इंटरवल में ना वो हाँ, इंटरवल तो सर इंटरवल तो रैंडमली लिखी गई है। हाँ, थोड़ा सा गलती इंटरवल में, थोड़ी सी गलती, बाकी ठीक है। इंटरवल रैंडमली लिखी गई है, फिर इसको ठीक करने से इसको ऐसे करके चेंज प्लस माइनस 1 अगर आप देख रहे हो तो वो समझ लो 5 to 7 समझ लीजिए उसको, ऊपर वाले को 4.5 to 7.5 समझ लीजिए। हाँ, 5 to 7 समझ लो ना, प्लस माइनस 1 लिख रहे हैं ना। नहीं, प्लस माइनस जेड अल्फा भी है ना सर, तो इग्नोरिंग जेड अल्फा, अज्यूमिंग जेड अल्फा इज सेम। जेड अल्फा जनरली टेक्स द वैल्यू 1.96। हाँ ठीक है, फिलहाल उसको इग्नोर कर देते हैं ना। हाँ जी, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस यस। राइट? सो द आइडिया इज कि हम एक पैरामीटर के बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है? तो खाली वेरिएंस नहीं होगा, लेकिन अगर x बार और y बार सेम था दो मॉडल का,
एवरेज एक्यूरेसी सेम थी दोनों की, राइट? तब हम वेरिएबिलिटी ऑफ मॉडल देखेंगे। Are you getting the point? Yes. Yes, Right? sir. Is it making sense? जी जी, चलो आगे। जी जी ओके, अब दो तरह के एरर्स होते हैं जनरली, राइट? अब एक होती है ट्रू वैल्यू और एक होती है ऑब्जर्व, राइट? अब आप सबने देखा होगा कि H0, 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 H1, H0, H1 इस तरह का ग्राफ देखा हुआ है सबने? कंफ्यूजन मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसको कई जगह पे, यस सर। राइट? क्या होता है ये? क्या होता है ये? क्योंकि हम सुपरवाइज लर्निंग में हैं, पूरा हमारा जो डिस्कशन है ये सुपरवाइज लर्निंग के बेसिस पे चल रहा है। तो क्या होगा, हमारा H0 और H1 ये क्या है? नल हाइपोथेसिस है, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। और यहाँ पे H0 और H1 है, नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कई बार हम ठीक होंगे और कई बार हमसे गलतियां होंगी। Are you getting my point? Yes. सिमिलरली कई बार हम ठीक होंगे और कई बार हमसे गलतियां होंगी। तो हमारे ठीक केसेस कौन से हैं इसमें? So the diagonal ones. तो ये और ये हमारे करेक्ट हैं। ये कहता है कि ये होना चाहिए, ये है, राइट? ये होना चाहिए और ये है। डू यू एग्री? Yes, sir. ये हमारे एरर्स हैं दोनों, राइट? अब इस एरर को क्या कहते हैं हम लोग? What is this error? False negative. लॉजिकल क्या है? What is the logical explanation? टेक्निकल में नहीं जाते हैं। ये एरर क्या कहता है हमें? कि सर क्लास लेवल 1 प्रिडिक्ट हुआ है बट एक्चुअली इट वाज 0, मींस इफ वी टेक टू क्लासेस ऑफ 0 and 1. ओके, और हाइपोथेसिस की टर्म्स में? Sorry? हाइपोथेसिस की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। Okay. So null hypothesis was supposed to be true, but the model predicted alternate hypothesis. Alternate hypothesis. Okay, so your prediction says alternate hypothesis when it is actually null hypothesis, right? Okay. Yes, yes. And in this case, So the alternate hypothesis was supposed to be true, but the model predicted null hypothesis. null hypothesis. अच्छा, अब क्लासिफिकेशन में जैसे हमें बताया रश्मीत ने बताया ना? Yes, sir. ओके, तो इसको क्लास लेवल C1, C2 एंड C1, C2 के टर्म्स में देखते हैं। तो यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, यहाँ C2 है और यहाँ C1 है, राइट? यही होता है? This is how we talk about, Yes, yes. Yes, sir. right? कितना मैंने ठीक लिखा है? Okay, so have you heard the name of something like type 1 error, Yes. type 2 errors? What is it? Type 1 error क्या होता है? What is type 1 error? What is Sir, type 2 error? When null hypothesis is rejected, Okay. so that means alternate hypothesis H. Reject H0 given H0 is true. Yes, sir. Right? ठीक है ना? Right? Reject H0 given H0 is true. Right? Agreeing my point? Yes. This says That's good. H0 when H1 is true. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Except क्या लिखा है? Except H0 when H1 is true. Reject H0 है। अच्छा उससे type 2 ठीक है, type 2 लिख लो, ठीक है।
ठीक है, तो ये दो तरह से हम इसको बताते हैं। अब क्या होता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी टेढ़ी हो गई है, बट we mark a reason this when we do a two-sided test. अब मैं इस पे बात करूंगा व्हाट इज टू साइडेड टेस्ट एंड व्हाट इज सिंगल साइड टेस्ट। जब हम टू साइड टेस्ट करते हैं तो हमारा जो एक्सेप्टेंस रीजन है और जो रिजेक्शन रीजन है इसमें ग्राफ टूट जाता है। तो दिस इज रिजेक्शन एंड दिस इज रिजेक्शन, दिस इज रिजेक्शन रीजन। ये दो रीजन है जहां पे आने से हम रिजेक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करते हैं टी को, और टी की वैल्यू अगर यहाँ आती है तो हम कहते हैं रिजेक्ट करो इसको, और टी की वैल्यू अगर अंदर आती है तो हम कहते हैं रिजेक्ट मत करो, एक्सेप्ट करो, इट्स नॉट ट्रू। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कैसी होती है टू साइडेड टेस्ट? इसमें नल हाइपोथेसिस हो सकता है, से ऐसा हो, से म्यू इक्वल टू थीटा, और H1 हो म्यू नॉट इक्वल टू थीटा, राइट? जैसे ऐसा होगा इसका मतलब इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, राइट? सर इस ग्राफ में व्हाट आर द एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ओके, द एक्सिस इज म्यू, आई मीन द पॉइंट्स, यू नो, जो आपका टेस्ट कर रहे हैं, समझ लो एक्यूरेसी लेवल टेस्ट कर रहे हैं आप, राइट? तो एक्यूरेसी लेवल तो सारे एक तरफ होंगे। आजा, अब उसको सेंटर कर दिया आपने म्यू पे, तो दो तरफ बन जाएंगे ये, राइट? तो अगर इस तरफ एक्यूरेसी लेवल को प्लॉट कर रहे हैं और सेंटरिंग कर रखी है म्यू पे, राइट, तो ये दोनों तरफ दिखेंगे आपको। अगर आप कहेंगे नहीं हम सेंटरिंग नहीं करेंगे म्यू पे, हमारी एक्यूरेसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू लेती नहीं है हमारी डेटा, तो हमारा ग्राफ क्या होगा, एक तरफ जाएगा, ये एक तरफ रहेगा, राइट? आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, राइट? क्या मेजर कर रहे हैं हम लोग, व्हाट इज दैट वी आर मेजरिंग, राइट? सो द आइडिया इज कि अगर हम इस तरह से हाइपोथेसिस क्यों लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं टू साइडेड। लेकिन अगर हमने ऐसे लिखा होता है H1 को, म्यू इज ग्रेटर देन थीटा, राइट, तो ये क्या होती है, राइट साइड हाइपोथेसिस हो जाती है। अगर इस तरह से H1 को लिखते हैं हम, म्यू इज लेस देन थीटा, तो ये लेफ्ट साइड हाइपोथेसिस हो जाती है। आर यू फॉलोइंग? यस सर, राइट? सो द आइडिया इज कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट करते वक्त हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है ये है, राइट? और ये वैल्यू कहाँ रहेगी, तो ये पॉइंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं इसके बीच में होगी तो हम मान लेंगे ठीक है, और इसके बियॉन्ड होगी तो हम कहेंगे रिजेक्ट करो, इसके बियॉन्ड होगी तो हम कहेंगे रिजेक्ट करो। ये जो है मनोज सर जी, इसका ना दोनों का एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, टू साइडेड और वन साइडेड का। ओके, आप जैसे बोलते हैं ना, वन साइडेड बोलते हैं हम के, अब जैसे अगर वो आपका वो क्या कहते हैं टेस्ट वैल्यू अगर 35 से नीचे है तो हम कहेंगे कोविड है, 35 से ऊपर है तो कोविड नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। 0.8 और 0.8 तो पॉइंट एस्टिमेट बढ़ा लिया आपने एक, ओके, तो कोविड हो सकता है, फिर भी हो सकता है, वैल्यू कम हो तो भी हो सकता है। हम कह रहे हैं इससे ज्यादा पर नहीं है, पर ज्यादा पर भी हो सकता है, व्हाटएवर जी। तो ऐसे जैसे टू साइड वन साइड के एक एक एग्जांपल कर लेते हैं ना, फिर समझ में आ जाएगा ये। ओके, लेट मी फिगर आउट एन एग्जांपल। टू साइडेड का एक एग्जांपल जो है, जैसे तो इसमें आते हैं ना, जैसे लेट मी फिगर आउट एन एग्जांपल, गिव मी अ सेकंड। सर दूसरे का भी ले सकते हैं ना। शुगर लेवल आपका इस रेंज से कम है तो भी प्रॉब्लम है, इस रेंज से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। एक थ्रेशोल्ड होता चाय है के कप में भी देख सकते हैं, 1 क्यूब से कम है तो भी रिजेक्ट कर दिया, 3 से ज्यादा है तो भी कर दिया। अच्छी चाय के लिए अगर शुगर एक मिनट में बस ढूंढ रहा हूँ एक एग्जांपल टू प्ले विद। ओके, नीरज सर आपने अच्छा एग्जांपल दिया है। और जब हम सिलेक्शन करते हैं ना इंटरव्यू में, हाँ जी सर, तो कोई बच्चा जवाब नहीं देता तो हम कहते हैं अंडर क्वालिफाइड है, कोई ज्यादा जवाब देते तो कहते हैं हमारे साथ फिट नहीं बैठेगा, इसको छोड़ते हैं। हाँ ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है।
सर ये चाय वाला एग्जांपल कई जगह फिट होता है, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग में भी हो जाता है कि हमने कोई चाय की शॉप खोलनी है और हम जानना चाह रहे हैं कि अच्छी चाय क्या होगी, तो हमें सैंपल लेना चाहिए रैंडम कि 1000 2000 5000 लोगों से टेस्ट कराए और अपने घर में ही टेस्ट कर लें। हाँ नहीं वो ठीक है, वो तो आपने कर दिया कि भाई लोगों ने इतनी चीनी से कम पर मना कर दिया कि नहीं पियेंगे और इतनी चीनी से ज्यादा पे मना कर दिया हम नहीं पिया, अच्छी नहीं है, ऐसा हो सकता है, करेक्ट। So should I play a video that talks about this hypothesis testing example? ओके सर। तो एक खान एकेडमी का वीडियो अभी मैंने तुरंत देखा है, मुझे लगता है वो अच्छे से बताएगा। वो शेयर कर दो, उसका क्या कहते हैं, लिंक शेयर कर। नहीं यहीं पे प्ले कर देते हैं। हाँ आई नो यू कैन प्ले इट। ओके सर इन जनरल बायस के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं किसी भी तरह की जो अनरियलिस्टिक या लिमिटेशन हम अपने मॉडल पे लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि हम सिर्फ लीनियर मॉडल ही अप्लाई करेंगे। सो सर्चिंग हाइपोथेसिस स्पेस पे हमने बायस लगा दिया ना। नहीं समझ आया, एक बार सर वीडियो देख लें। हाँ जी सर, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा रिलैक्स करके। Fact, we didn't say. आवाज आ रही है? Last video, our null hypothesis, the drug had no effect, and नहीं ठीक नहीं आ रहा, लिंक पेस्ट कर दो इसका। just has an effect. इसका लिंक पेस्ट कर दो, ठीक नहीं आ रहा है। ओके लिंक आ गया सबके पास? अब लोकल ही देख लेते हैं। Yes, sir. So we can discuss this video once all of you have seen this. Is a 6-minute video, I think, and it will. Okay. In the last video, our null hypothesis the drug had no effect, and our alternative hypothesis that the drug just has an effect. We didn't say whether the drug would lower the response time or raise the response time. We just said the drug has an effect, that it will not, the mean with when you have the drug will not be the same thing as the population mean. And then the null hypothesis, no, your mean with the drug is going to be the same thing as the population mean, has no effect. In this situation where we're really just testing to see if it had an effect, whether an extreme positive effect or an extreme negative effect would have both been considered an effect, we did something called a two-tailed test. This is called a two-tailed test. Two-tailed test. Because frankly, a super high response time, if you had a response time that was more than 3 standard deviations, that would have also made us likely to reject the null hypothesis. So we were dealing with kind of both tails. You could have done a similar type of hypothesis test with the same experiment where you only have a one-tailed test. And the way we could have done that is we still could have had the null hypothesis. We still could have had the null hypothesis B, that the drug has no effect. Drug has no effect. Or that the mean with the drug, the mean, and maybe I could say the mean with the drug, is still going to be 1.2 seconds, our mean response time. Now, if we wanted to do a one-tail test, and for some reason we already had a, maybe a view that this drug would lower response times, then our alternative hypothesis, and just so you get familiar with different types of notation, some books or teachers will write the alternative hypothesis as H1. Sometimes they write it as H alternative. Either one is fine. If you want to do a one-tailed test, you could say that the drug lowers response time. The drug lowers response time, or that the mean with the drug is less than 1.2 seconds. Now, if you do a one-tailed test like this, what we're thinking about is
what we want to look at is, all right, we have our sampling distribution. And actually, I can just use the drawing that I had up here. You had your sampling distribution of the sample mean. We know what the mean of that was. It's 1.2 seconds, same as the population mean. We were able to estimate its standard deviation using our sample standard deviation, and that was reasonable because it had a sample size of greater than 30, so we can still kind of deal with a normal distribution for the sampling distribution. And using that, we saw that the result, the sample mean that we got, the one at 1.05 seconds, is 3 standard deviations below the mean. Is 3 standard deviations below the mean. So if we look at it, let me just redraw it with our new hypothesis test. So this is the sampling distribution. That's the sampling distribution. It has a mean right over here at 1.2 seconds. And the result we got was 3 standard deviations below the mean. 3 standard deviations below the mean. 1, 2, 3 standard deviations below the mean. That was what our 1.05 seconds were. So when you set it up like this, where you're not just saying that the drug has an effect, well, in that case, and that was the last video, you'd look at both tails. But here we're saying we only care, does the drug lower our response time? And just like we did before, you say, okay, let's say the drug doesn't lower our response time. If the drug doesn't lower our response time, what was the probability, or what is the probability of getting a lowering this extreme or more extreme? So here it will only be one of the tails that we consider when we set our alternative hypothesis like that we think it lowers. So the if our null hypothesis is true, the probability of getting a result more extreme than 1.05 seconds, now we are only considering this tail right over here. Let me put it this way: more extreme than 1.05 seconds, or let me say lower, because in the last video we cared about more extreme, because even a really high result would have said, okay, the mean's definitely not 1.2 seconds. But in this case we care about means that are lower. So now we care about the probability of a result lower than 1.05 seconds. That's the same thing as sampling from the sample, of getting a sample from the sampling distribution that's more than 3 standard deviations below the mean. And in this case, we're only going to consider the area in this one tail. So this right here would be a one-tail test, where we only care about one direction below the mean. And if you look at the one-tail test, this area over here, we saw last time that both of these areas combined are 0.3%. But if you're only considering one of these areas, if you're only considering this one over here, it's going to be half of that, because the normal distribution is symmetric. So it's going to be 0.13%. So this one right here is going to be 0.15%, or if you were express it as a decimal, this is going to be 0.0015. So once again, if you set up your hypotheses like this, you would have said, if your null hypothesis is correct, there would have only been a 0.15% chance of getting a result lower than the result we got. So that would be very unlikely. So we will reject the null hypothesis and go with the alternative. And in this situation, your p-value is going to be the 0.0015. हेलो जी सर, हाँ जी देखा हमने। चलो हाँ देखा, तो चलो इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि बहुत नीट नहीं लगा मुझे तो फ्रैंकली। जी there were some issues with this, but I think there are some issues with this video. Probably we can look for better material. yeah एक तो एक्सटेम्पोर था ना ये, बस अचानक से मटेरियल जो गूगल में पहला आया मैंने ले लिया इसको। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। I think we can start from here next time. Right. So unless I think Neeraj sir wanted to say something. Yeah. Neeraj sir. हाँ जी सर।
आप कुछ कह रहे थे एक्चुअली, वो हमें बीच में ये देखने लग गए हम हाँ रिलैक्स करने सर, के मैं लिए। ये कह रहा था कि हम किसी भी तरह की अपने मॉडल पे लिमिटेशन लगाते हैं। जी फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि सिर्फ लीनियर मॉडल ही यूज करेंगे, हाँ 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 that itself leads to bias. Any type of ठीक है unrealistic ठीक है। assumption or इन limitation. मशीन लर्निंग, you see, in हाँ जी। machine learning, you know, we always begin with a hypothesis space, right? अच्छा, हाँ जी और सर। ये जो है उसका मॉडल का इनहेरेंट बायस है ये। हाँ जी जैसे सर। सपोर्ट वेक्टर मशीन का ये आपका unless you go for kernel and all that, so this is the inherent bias, you know, कि ये लीनियर स्पेस में ही इसको सेपरेट कर रहा है उसको। कुछ ना कुछ हर मॉडल का होगा ही। ठीक है ना। अब जैसे हमें अगर इसको छोड़ दें मशीन लर्निंग को, और एक बंदूक हम ले लें जिसकी आगे से जो नाली होती है वो थोड़ा सा आगे से बेंट है, तो वो उस मशीन का इनहेरेंट बायस है ना, वो तो जो भी है। हाँ जी सर। तो वो मशीन वैसे ही चलेगी आपकी उसके हिसाब से। तो जो मॉडल का टोटल, आई डोंट नो वेदर माय एनालॉजी इज करेक्ट, बट जो हाइपोथेसिस स्पेस जो है हम लेते हैं, जब आप उसको करते हैं, चलो एक गॉसियन कर्नल लेते हैं, तो यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योरसेल्फ टू अनदर हाइपोथेसिस स्पेस। हाँ जी सर। जब हम एक लीनियर क्या कहते हैं, एक सिंगल वो लेते हैं, क्या कहते हैं, सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं हम। हाँ जी सर। तो whatever model we take, so there is definitely an inherent bias in the system. हाँ बिल्कुल सर, मैं भी यही चीज कह रहा था कि हम जो ठीक है, हम रिटन टेस्ट के बेस पे हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं बच्चों का, वी आर नॉट नेसेसरली जजिंग देयर एकेडमिक कैपेबिलिटी। वो तो जो भी रिटन टेस्ट का जो बायस है वो तो है ही है, जो भी इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो बायस है, बच्चे रट के नंबर लेते हैं बिना समझे, वो उसका जो बायस है वो है ही है। सिस्टम का नंबर के बेस पे हम एडमिशन दे रहे हैं, व्हाटएवर इट इज। आई डोंट नो, मनोज सर जी आप प्रकाश डालना चाहोगे कुछ? तो फिलोसॉफिकली कहानी ये है कि हम कुछ भी करें कुछ और छूटेगा। यू नो, वी कैन ओनली हैव अ लिमिटेड सेट ऑफ यू नो काइंड ऑफ प्रिविलेजेस, राइट। तो अगर हम, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि हम रिटन टेस्ट से क्वालिफाई करेंगे लोगों को, तो हम रिप्रेजेंटेशन स्किल्स पे ही फोकस कर रहे हैं, राइट। उनके कैसे लिखने की क्षमता है या हमारे क्वेश्चंस पे कैसे रिस्पॉन्ड करने की क्षमता है, तो हमने लिमिट कर लिया अपने आप को। तो हम कुछ तो करेंगे ही फिल्टर करने के लिए। तो जैसे हम कोई भी मशीन लर्निंग का मॉडल लगाएंगे, तो हम कोई तो मॉडल लगाएंगे अपनी डेटा को समझने के लिए, क्लासिफिकेशन हो, चाहे क्लस्टरिंग हो, चाहे और कोई काम हो, फीचर रिडक्शन का काम। द आइडिया इज कौन सा बढ़िया आउटपुट देता है हमारे ऑब्जेक्टिव को सूट करने के लिए, दैट वी कंसीडर एज द बेस्ट। और सिनेरियो with all the problems of the inherent biases of the model, the beauty of bias is that if there is no bias, there is no learning. हाँ जी सर बिल्कुल। That we learn only because the model, otherwise तो क्या ना, वो independently देख रहा है, तो वो तो कुछ भी होगा, एक एग्जांपल देखेगा तो वो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, फिर दूसरा देखेगा, उसको भी कहेगा भाई कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सर ये बड़ा फाइन बैलेंस है। बायस नहीं होगा तो सीखेंगे नहीं, ज्यादा हो जाएगा तो गलत सीख जाएंगे। तो ये फ्रिक्शन की तरह है सर, सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगी। जी जी राइट। और फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आप चल नहीं पाएंगे, राइट। तो योर एनर्जी विल लॉस। सो इस तरह की कहानी है कुछ। बट एनीवे, यू नो, द आइडिया इज, हम लोग ना जनरली जब मॉडल चलाते हैं और जब हम करते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि मॉडल और डेटा दो अलग अलग चीज है, और कोई भी डेटा किसी मॉडल में फिट हो जाता है, और ये हमारा यू नो अंडरलाइन एजम्पशन होता है, इसीलिए हम अपना डेटा जबरदस्ती हर मॉडल से पास करा देते हैं। जी जी। तो सो द आइडिया, हम यही तो करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो 6 मॉडल लगा के देख लो। हाँ, और हम डेटा की तरफ देखते नहीं है, हमारा फोकस खाली लिमिटेड होता है, एक्यूरेसी है या कोई और मेट्रिक मेजर है, वो कितना इंप्रूव हो रहा है, और इंप्रूव हो रहा है और लिटरेचर से सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ ऐसा ही होता है, तो हम कहते हैं छापो इसको, राइट।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो हम शायद बिहेवियर समझ पाए हमारी डेटा का और मॉडल का, और फिर ये समझ कि कौन सा मॉडल किस डेटा के लिए अच्छा चल सकता है. Data characteristics are very important. Yeah, before we run the model, we should have some intuitive idea about why a particular data should run better on a particular set of model. Yes, sir. Right. So anyway, then thank you. If you agree, we can terminate the session here and we can begin this session again next week sometime. With the summary. Yeah. ठीक है, इसको कंडेंस्ड रिकैप कर लेंगे मनोज सर. Sure. ठीक है, थैंक यू. Okay, thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, sir. And thanks for joining despite a holiday. Thank you, sir. Okay, bye. Good evening, everyone. बंद कर दें. हाँ जी सर. Yes, sir. ओके सर. बाय.